आपको पता है एक्सेल आपने एक्सेल कब नहीं करवाया? करवा दिया उस बैच में। एक्सेल तो करवाया हमने। करवाया। हाँ, हाँ, मैं हर बैच में एक अब कल ही तो पता करवा। है इंटरव्यू में मेरे से तो 3 क्वेश्चन पूछे एक्सेल के। जिसमें इंटरव्यू जिसमें क्या क्या पूछा एक पूछा कि और कुछ कुछ एक यहाँ पे। So we are discussing about anonymous function. What is anonymous function? Which have no any body, which have no any name. That is called anonymous. नहीं, like a host. नहीं, host. भूत। आज फंक्शन कंप्लीट होगा। पता है किसमें थी जॉब डेटा एंट्री में। डेटा एंट्री। हाँ, सुनो तो किया उसके बाद बोला डेटा एंट्री के लिए तो काम ही नहीं है, तो काम क्या करोगे? वो इतने तो किया था। Anonymous function which has no any name. No any name. That is called anonymous function. एनोनिमस फंक्शन। ठीक है। ये चार होते हैं फिल्टर, लैम्डा, फिल्टर, मैप, रिड्यूस। ठीक है। इफ देर आर मेनली फोर, नहीं एक्चुअली लैम्डा हेल्प अस टू क्रिएट एनोनिमस फंक्शन। इसीलिए इंपॉर्टेंट बट एनोनिमस फंक्शन क्रिएटेड बाय द हेल्प ऑफ लैम्डा। जैसे मैंने आपको कल की क्लास में बताया था, सपोज देयर इज अ वेरिएबल हियर, सपोज यू वांट टू क्रिएट अ फंक्शन which have no any body, no any name. Suppose if you want to create a function in a single line, then you can simply write here a variable. There is a variable a num, and you can simply write here lambda. Lambda is the keyword, and whatever how many parameter you want, जितने पैरामीटर चाहिए वो आप लिख दो। जैसे सपोज दो पैरामीटर चाहिए तो हम सिंपली राइट करेंगे n1 n2, एंड वी वांट टू परफॉर्म एडिशन, सो सिंपली राइट here n1 plus n. Now this become a function. If you are passing here num 10 comma 20, then you can access the value of n1 plus n2. Yes or no? देखो आप क्लियरली आपको आउटपुट दिख रहा है। जस्ट वेट, गूगल कोलैब कनेक्टिंग विथ क्लाउड, कनेक्टेड परफेक्ट। नाउ सी क्लियरली दिख रहा है हमें। यस और नो? नाउ नम बिकम अ फंक्शन। नाउ नम बिकम क्या, नम में क्या फंक्शन क्या फंक्शन। Now suppose if you are again you can just passing again num, and you pass two values 50 comma 20, and you can see the result. This one is the output of num. This one num. अब देखो हमने पढ़ा था कि फंक्शन रिटर्न्स मल्टीपल वैल्यू, तो क्या लैम्डा के थ्रू मल्टीपल वैल्यू रिटर्न करा सकते हैं? यस वी कैन। देखो कैसे, वी आर पासिंग हियर num x comma y, x plus y, ये एडिशन हो गया x माइनस वाई, x into y, x divided by y. Now see, there is a things here we need to define a variable. Sorry, we need a right here keyword lambda. Okay, now it become a function. You can pass here value in 80 comma 56, and you can get the result. See, आ रहा है आपको multiple result. You can define multiple value here n1, n1 comma n2, n1, n2, n3, and this one is n4. These are the four variable, and these are the four value. Means what? Lambda also help us to return multiple value at a time. आपको multiple value return करना है. Done. Now move. Second thing is that can you guess कि in lambda function we are creating, you are using control statement like if else. क्या इसके अंदर if else यूज करता है? जैसे वो you want to create a function that returns which a number is even or odd. मुझे फंक्शन बनना है तो ये चेक करें कि ये नंबर इवन है या ऑड है। इसे कैसे करोगे? मतलब if else लगाना होगा, है ना? तो आप सिंपली लिखोगे df इज इक्वल टू लैम्डा, लैम्डा, एंड इवन नंबर चेक करने के लिए कितने पैरामीटर की नीड है? एक सिंगल।
So pass your single parameter and you need to what? Check it. So you can simply write it if num module division by 2 equal to 0. So if this condition is true, that means what? The number is even number. तो यहाँ पे जो कंडीशन ट्रू होने के बाद जो स्टेटमेंट लिखना होता है वो आप क्या लिखते हो पहले स्टेटमेंट पहले कंडीशन से पहले. सो यू कैन सिंपली राइट है एफ num is a even number. Num is a even number. Or if this condition is false, then we can simply write here what? Num is odd number. Perfect. समझ में आया. अब आप यहाँ पे डीएफ के अंदर कितने पैरामीटर पास करने होंगे बताओ. सिंगल. सो पास ये 56 है सिंगल पैरामीटर एंड यू कैन गेट द रिजल्ट. बता रहा है. अगेन यू कैन पास योर डीएफ. You can pass here 99. You can get the result. Which one? 99 is odd number. Done. यहाँ तक हमें clear हुआ सभी को? Yes or no? Means what? If else हम use कर सकते हैं. Can you guess कि how we use multiple if else? Like the if. जैसे हम आपसे क्वेश्चन करें कि एक नंबर में पॉजिटिव है या निगेटिव है. एक बेला जो पॉजिटिव है तो इवन है ऑड है, यदि निगेटिव है तो इवन है ऑड है. यदि मल्टीपल कंडीशन में वर्क करना हो तो इसमें ना if वर्क नहीं करता. इस बार if के अंदर आप लगा सकते हो. इसमें if वर्क नहीं करता. तो हमें क्या करना पड़ेगा? if के अंदर if लगाना पड़ेगा, है ना. देखो कैसे. You can simply write here df2 is equal to. You can simply write here calc is equal to lambda and pass here variable n. If n module division by 2 equal to 0, if just condition is true. But इससे पहले क्या चेक करना था कि ये नंबर पॉजिटिव है या निगेटिव. तो हमें क्या लिखना पड़ेगा बताइए. पहले तो ये चेक करना पड़ेगा ना कि ये नंबर इज ग्रेटर देन 0. यदि ये ग्रेटर देन 0 है एंड सेकंड कंडीशन इज व्हाट? नम मॉड्यूल डिवीजन बाय 2 इक्वल टू 0. मींस व्हाट? ये ग्रेटर है और 2 से डिवाइड मतलब ये पॉजिटिव ही बनेगा. यस और नो? देन वी कैन. यदि ये कंडीशन ट्रू है तो हमें क्या लिखना था? स्टेटमेंट ट्रू यहाँ पे लिखते थे. देखो ये जो सिंगल लाइन में आपने पढ़ा था लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, आप याद करें उसमें भी सिंगल लाइन जब आप लिस्ट लगाते थे तो कंडीशन ट्रू होने के बाद जो स्टेटमेंट होता है हमेशा ये के पहले राइट करते हैं. सो अगेन वी आर राइटिंग हियर द स्टेटमेंट बिफोर कंडीशन. देखा ना आपने. तो हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? एफ में क्या लिखेंगे बताइए. स्टेटमेंट क्या लिखेंगे कि एन. अच्छा कहीं एन लिख रहा हूँ कहीं नम लिख रहा हूँ. वाओ यार बहुत वर्किंग. एन इज अ पॉजिटिव इवन नंबर है ना डिम्पल. और इफ दिस कंडीशन इज फॉल्स. देखो इफ के बाद एल्स होगा. इफ दिस कंडीशन इज फॉल्स देन वी कैन गेस. यदि ये कंडीशन फॉल्स है तो क्या ऑड नंबर हो सकता है. तो हमें फिर से चेक करना पड़ेगा कि यदि ये कंडीशन फॉल्स है देन देखो. अब इल्स के अंदर ध्यान से देखिएगा. अब इल्स के अंदर सिर्फ स्टेटमेंट लिख सकते, कंडीशन तो नहीं लिख सकते. बट यदि मैं इल्स के अंदर इफ लगा दूं तो कंडीशन लिख सकते हैं. तो अब हम यहाँ पे कंडीशन लगा देंगे. इफ दिस कंडीशन इज ट्रू एंड डिवाइडेड बाय 2 देन रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0. देन इट इज नॉट इक्वल टू 0 मींस व्हाट? नंबर इज पॉजिटिव और व्हिच वन ऑड नंबर. नहीं ये नंबर इवन नहीं होके क्या हो गया? ऑड. यहाँ और वो कहाँ लिखेंगे? इल्स के जस्ट बाद. इतनी बात समझ में आ गई. देखो ये कॉम्प्लेक्स होते जा रहा है इंटरनली बट आपको समझ में आ रहा होगा कि दिस इज पॉजिटिव बट ये ऑड नंबर है. अच्छा अब एक चीज बताओ. अब ये कंडीशन कब फॉल्स होगा आप बताएं. ये कंडीशन कब फॉल्स होगा सर बताएं आप. ये कब होगा फॉल्स? जब नंबर इज नेगेटिव. जब नंबर इज नेगेटिव. तो नंबर इज नेगेटिव मतलब अगेन इल्स. अब क्या लगाया है ना. समझ गई. इफ अब सेकंड कंडीशन क्या लिखेंगे? इफ नम मतलब वो लेस देन 0. नम लेस देन 0. लेस यदि ये कंडीशन ये 0 से छोटा है एंड n है ना यार. नम मत लिख लो. n है तो नम यूज मत करो. ये कंडीशन ट्रू कब होगा बताइएगा? n लेस देन 0 और मॉड्यूल डिवीजन बाय 2. ये कब? दैट मींस व्हाट? नेगेटिव ऑड नंबर. परफेक्ट. n इज नेगेटिव ऑड नंबर. नेगेटिव ऑड नंबर. और ये कंडीशन जब फॉल्स हो तब क्या हमें बताने की नीड है? सॉरी टू है तो इवन ना. ऑड क्यों कह रहे हो आप? और ये जब कंडीशन फॉल्स है तो सिंपल नेगेटिव ऑड. तो अब हमें इफ आप लगाने की नीड है नहीं.
अब तुमने सारे कंडीशन चेक कर लिए, तो हम सिर्फ क्या लिखेंगे, n इज नंबर। बस देखिए थोड़ी लो आपकी आप क्लियरली समझना, थोड़ी सी कोड लंबे हो गए बट स्टिल देयर इज नो इशू। देन हाउ मेनी पैरामीटर वी नीड, how many number of parameter, single. You can pass here 19, or the 19 is what, positive odd number. Then see you are getting the answer, 19 is a positive odd number. If you are passing here -9, तो can you guess कि how our works, सबसे पहले क्या चेक होगा, all of first check this condition, then move to this, इस तरह से हमारा फ्लो होगा, मतलब लेफ्ट टू राइट, नहीं, perfect. If I am passing here -9, then see carefully this -9 is odd number. हमने शायद वहाँ पे नेगेटिव लिखना भूल गए हैं, देखो यहाँ पे हमने नेगेटिव ऑड लिखना छोड़ दिया ना। अब देखो परफेक्ट, नहीं तो क्या आपको ये समझ में आया कि इलिफ तो वर्क नहीं करता बट मल्टीपल इल्स लगा सकते हैं, समझ में आया ना आपको। नाउ इफ यू वांट टू वर्क विद लूप, सपोज करो कि हमें इसमें लूप के साथ वर्क करना होगा, देन इस केस में लैम्डा के लिए फेल्यूर है, इन दिस केसेस भैया इस केस में आपका जो लैम्डा है वो फेल्यूर है। अब इसके लिए आपको क्या यूज करना पड़ता है, इसके लिए क्या यूज करना पड़ेगा, फिल्टर। वी हैव अ फिल्टर फंक्शन दैट हेल्प अस टू वर्क विद लूप, दैट ट्रीटेड एज अ लूप, इसको मैं एज अ लूप के तरह ट्रीट कर सकता। जैसे कि मैं आपसे क्वेश्चन करा, मैंने एक df1 आपको लिस्ट दिया, उसके अंदर ये सारे एलिमेंट स्टोर करा दिए, ठीक है, और मैंने आपसे कहा कि वी वांट टू एक्सेस द नंबर दैट इज ओनली इवन नंबर, मैं इसमें से वो नंबर एक्सेस करने हैं दैट वन ओनली इवन। तो अब आपको बिना लूप, सपोज अब मोहित क्या करना पड़ेगा, हर एक एलिमेंट को एक्सेस करना पड़ेगा वन बाय वन और चेक करना पड़ेगा ये नंबर इवन है ऑड है, बेटा वन बाय वन लूप को एक्सेस एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए लूप चलाना विदाउट पॉसिबल ही नहीं है। तो अब लूप हमारे फुल लैम्डा के अंदर चलती नहीं है, तो क्या यूज करना पड़ेगा, फिल्टर। फिल्टर क्या करता है, ध्यान से देखो, फिल्टर के अंदर सबसे पहले क्या पास करते हो आप, फंक्शन, दो पैरामीटर्स में रिक्वायर्ड है, फंक्शन और देन सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होता है, डेटा टाइप। कौन कौन से सीक्वेंस में होते थे, आपके स्ट्रिंग, बाइट्स, बाइट्स अरे, लिस्ट, टपल, रेट, नहीं सीक्वेंस। तो ये आपको पैरामीटर पास करने पड़ेंगे तब ये वर्क करेगा जाकर, समझ गए होंगे। तो ये सिंटेक्स था। तो अब हम देखिए, अब हमें फंक्शन कौन सा बनाना है जो इवन आउट चेक करे, हमें एक फंक्शन में क्या बनाना है, एक ऐसा फंक्शन जो इवन आउट चेक करे, यस और नो। तो हमने यहाँ पे लगाया फिल्टर, एक वेरिएबल ले लेते हैं df या df कुछ भी वॉटेवर ले लो, फिल्टर एंड वी नीड अ फंक्शन। तो कैन यू गेस कि वी क्रिएट अ फंक्शन बाय द हेल्प ऑफ लैम्डा, लैम्डा के थ्रू बना लेंगे या आप मैनुअली भी बना सकते हो, बट स्टिल हम लैम्डा के थ्रू बना रहे हैं। लैम्डा देन फंक्शन का मैं एक पैरामीटर की नीड है n, और n को मैं क्या करूँगा, n मॉड्यूल डिवीजन बाई 2 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, इवन नंबर हो गया, यस और नो। यदि ये कंडीशन ट्रू हो रहा है मतलब इवन नंबर है। और दूसरा पैरामीटर, ये तुम्हारा एक फंक्शन बन गया कि नहीं बन गया बताइए। और दूसरा पैरामीटर क्या, ये फंक्शन क्या कोई नेम है इसका, क्या इसकी कोई बॉडी है, क्या आप जो यहाँ पे फंक्शन बनाए हैं क्या इसकी कोई नेम है, नो नेम नो बॉडी, विदाउट बिकॉज ऑफ दिस वी आर सेइंग दैट लैम्डा दिस वन इज आवर एनोनिमस फंक्शन, लाइक रियल लाइफ में कोर्स नहीं। और सीक्वेंस इज व्हाट, df1, और हमारा सीक्वेंस में क्या पास करोगे, df1, देन सी द रिजल्ट, ये क्या है, ऑब्जेक्ट। तो यदि आपको आउटपुट देखना है तो यू कैन सी इन लिस्ट फॉर्मेट, इसको लिस्ट में या टपल में जिसमें भी कन्वर्ट करो, देखो आ रहा है ना आउटपुट, क्या आप देख रहे हो, सिर्फ इवन इवन नंबर एक्सेस कर रहा है उसका, यस और नो, आप देख सकते हो, क्लियर हो रहा है आंसर, देखो सर देखो है ना, डन। और एक चीज बताना बेटा, आप सिर्फ ये श्रुति बताना, इससे क्या होगा आउटपुट, अब क्या होगा इसमें बताना, अब क्या होगा आउटपुट, ओनली ऑड, जो ऑड नंबर होंगे वो सिर्फ आएंगे, डन। झूठ है, समझ में आया नहीं आया, क्लियर होगा हम सभी को। तो दिस आर द थिंग्स जो आपका, अच्छा एक चीज और, एक क्वेश्चन और समझ में आया। अब वर्क कैसे कर रहा है, समझिए आप वर्किंग कैसे है, आप बताइए। सीक्वेंस में आपने df1 को पास किया, df1 ये फिल्टर क्या कर रहा है, इस एलिमेंट को वन बाई वन यहाँ पे पास कर रहा है। तो इनकी पहली वैल्यू क्या हुई है 11, और 11 यदि ये कंडीशन को फुलफिल कर रहा है तो वो हमारे इस df के अंदर स्टोर होता चला जा रहा है वन बाई वन,
समझ गए ना? तो आप ये जो यहाँ पे आपने लिस्ट लिख रखा था, उस लिस्ट को आप चाहें तो डायरेक्टली यहाँ भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैं क्या किया कि डायरेक्टली यहाँ पे ही लगा दिया, तो अब क्या होगा, जो रिजल्ट आ रहा है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लिस्ट में, और फिर वो डीएफ में स्टोर हो रहा है। तो ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं ये सब समझ में आया हमें? तो दिस आर द थिंग्स अबाउट फिल्टर। फिल्टर क्या करता है, आपको एक कंडीशन के भी यहाँ पे आपके सीक्वेंस को इटरेट कराता है। नहीं, नेक्स्ट वन इज द मैप। मैप इज द नथिंग बट, मैप का काम थोड़ा डिफरेंट है। मैप क्या करता है आपका, कैन यू गेस व्हाट इज द यूज ऑफ मैप? हाँ। मैप मैपिंग करता है। जैसे जितने भी एलिमेंट, जैसे हम आपसे क्वेश्चन करें कि दीज आर द एलिमेंट ऑफ DF1, और मैं आपसे यदि क्वेश्चन करूं कि आई वांट टू मल्टीप्लाई विथ 10, अच्छा बैठो, आई वांट टू मल्टीप्लाई विथ 10 ईच एलिमेंट, सभी एलिमेंट मुझे कितने से मल्टीप्लाई करना है, 10 से। तो कैन यू गेस कैसे करेंगे? देखिए, अभी जो आपने फिल्टर यूज किया, फिल्टर का काम क्या था, फिल्टराइज करना। जैसे रियल लाइफ में मानो से पानी में फिल्टर का अलग काम है उसका। अब मैं मैपिंग करने की बात कर रहा हूँ, मतलब अब किसी को फिल्टर छोड़ना नहीं है, सभी बेस लगानी है। यस और नो? तो आप यूज करते हैं क्या इसके लिए, मैप फंक्शन। वी हैव अ मैप। मैप का काम क्या, हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट्स पे चीजें बढ़, बट फिर वही काम होगा, पहले एलिमेंट एक्सेस यदि होगा नहीं, तो इसमें हमारे आप वर्क कैसे करेंगे? तो हमें क्या करना था, सभी में 10 से मल्टीप्लाई करना था। तो पहले एलिमेंट को 1 बाई 1 एक्सेस करोगे ना, तब तो 10 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये काम आपको कौन करके देगा, मैप। समझ गए यहाँ? तो देखिए कैसे करेंगे। यहाँ वेरिएबल लिया हमने, कुछ भी ले लो, सपोज करो हम नम ले लिए, एंड यू कैन पास योर मैप। मैप में भी दो पैरामीटर की रिक्वायर्ड होता है, सी केयरफुली। वी हैव अ टू रिक्वायर्ड पैरामीटर। फर्स्ट वन इज द फंक्शन नेम, we need a function name. Then what is the second parameter, sequence. Second one is the sequence. So pass here, फंक्शंस वाले के लिए देखा। ठीक है। अब देखिए मैप में सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, फंक्शन। सो पास हियर, क्रिएट अ फंक्शन। एक फंक्शन बनाओ जो 10 ऐड करे। तो फंक्शन ऐसे ही तो बनेगा n, और n में क्या करना है, ऐड करना है 10, नहीं या मल्टीप्लाई करना है 10। तो क्या हो गया ना फंक्शन, जिस जो क्या करेगा, हर एक एलिमेंट को 10 से मल्टीप्लाई कर देगा। और नाउ पास हियर व्हाट, नहीं देखो आप सभी एलिमेंट को वही सेम प्रॉब्लम आएगी। तो इसको क्या आएगा, आपको लिस्ट या टपल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखिए सभी पे 10 से मल्टीप्लाई हो सर गई। आज प्लीज फ्री होके कॉल कर लेना। क्या? सर प्लीज आज फ्री होके कॉल कर लेना। ठीक है राहुल खन्ना, ठीक है। यहाँ तक हमें समझ में आया? तो एक क्वेश्चन है, यदि मैं आपसे क्वेश्चन करूँ, मुझे इसका स्क्वायर रूट चाहिए होता। प्रकाश भैया, प्रकाश भैया, इसको थोड़ा ऑन करवा देते भैया। आप समझे मेरे क्वेश्चन को? इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना होता है DF1 का। तो लिखो, पुट क्या लिखते हैं, मोहित लिखो, DF1 का हर एक रूट को स्क्वायर रूट क्या लिखते हैं, जहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 10 वहाँ पे 0.25, नहीं रूट निकल जाता आसानी से। समझ में आया नहीं आया सबको? दिस इज द थिंग्स अबाउट मैप। मैप का काम आपने समझा ना, हर एक इंडिविजुअल पे वो ऐड कर रहा है, चाहे वट एवर मॉडिफिकेशन कर रहा है, बट हर एक एलिमेंट पे कर रहा है। थोड़ी चीजें इंपॉर्टेंट है ना? और लास्ट वन इज द रिड्यूस। रिड्यूस के अंदर भी पहला पैरामीटर क्या पास होता है, फंक्शन, और दूसरा पैरामीटर क्या पास होता है, सीक्वेंस। काम अलग अलग है ना बच्चे, है तो काम ही तो मेन चाहिए होता है सबका एक, है ना सर? डिम्पल, डिम्पल हमारा ना डिम्पल है। अब मैं आपसे यदि क्वेश्चन करूँ, मुझे इसके हर एक एलिमेंट को ऐड करना है, 10 प्लस 20 हर एक एलिमेंट को ऐड करना है। देन कैसे करेंगे आप? अगेन वी कैन क्रिएट पास हियर नम। देखो रिड्यूस आपके एक लाइब्रेरी में अवेलेबल है, यू कैन इंक्लूड फ्रॉम फंक्टूल इंपोर्ट रिड्यूस, ठीक है। नम, अब यहाँ पे लिखोगे आप रिड्यूस, रिड्यूस, और यहाँ पे सबसे पहले क्या पास करोगे, फंक्शन। अब एक फंक्शन बनाना है जो सभी को ऐड करे, यही ना? तो फंक्शन कैसे बनाएंगे, लैम्डा के थ्रू, लैम्डा एक्स टोमा वाई, इस पे क्या करना है, एक्स प्लस वाई, सीक्वेंस में n1। समझ गए ना आप?
और ये काम क्या करेगा, देखो x की वैल्यू पहले क्या बनेगी आपकी, ध्यान से बचेगा 10, और y की वैल्यू क्या बनेगी 20। 10 प्लस 20 क्या हो जाएगा 30, और वो 30 कहाँ स्टोर हो जाएगा x में। तो y की अब सिर्फ वैल्यू किसकी चेंज होगी, y की। x हमेशा प्रीवियस वैल्यू को कैच करके रखेगा, समझ गए ना आप? देखिए आपको आउटपुट आ गया। दिस इज द इम्पोर्टेंट अबाउट सॉरी रिड्यूस। ये चार फंक्शन हमने पढ़ा, कौन कौन से, लैम्डा, फिल्टर, मैप, रिड्यूस। क्या हमें क्लियर हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, क्रिएट अ फंक्शन विदाउट नेम विदाउट बॉडी। और आप यदि नहीं पढ़े रहोगे ना तो बिल्कुल ब्लैंक हो जाओगे, फिर आप कहते रहोगे सर ने नहीं पढ़ाया था, है ना? ये समझ गए ना ये चीजें? तो आप ये चीज ध्यान रखना है आपको। आप बता रहे हो किसके नाउ वी आर मूविंग टू अनदर टॉपिक दैट इज कॉल्ड फाइल हैंडलिंग। ये फंक्शन यही करता, फंक्शन हमारा कंप्लीट हुआ है, ठीक है ना? फाइल हैंड हमारा फंक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। एनीवन हैव एनी क्वेश्चंस? यहाँ तक नितेश, लक्ष्य, मोहित, उत्कर्ष, वर्षा एंड मोहित हैव एनी क्वेश्चंस? मोहित क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन नो प्लीज? नो सर, अभी नहीं। उत्कर्ष, नो remaining one, if anyone have, then please let me know if anyone have। आ जाइए सैप, have any question? No, no one have no any questions? No one have no any questions, okay। We are moving to another topic, that one is the file handling। हम आगे टॉपिक पर बढ़ रहे हैं, फाइल हैंडलिंग। मोहित आपने ग्रुप वो चैनल पे गए थे, देखा आपने चैनल पे वीडियो अवेलेबल थी आपकी? सर, एक्चुअली मैं कल की क्लास से ले नहीं पाया था, तो मैं अभी रिकॉर्डिंग देख नहीं पाया हूँ। कल मैं कहीं गया था, बाकी मैंने सब देख रखे हैं, बस कल की ओनली अभी नहीं आपने ले देखी पाया। अब आपकी रिकॉर्डिंग यहाँ पे? ओके सर, इसको मैं देखूंगा आज। हाँ सर। हाँ, ये हमारी रिकॉर्डिंग की प्लेस है जहाँ पे आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ओके सर। ये मैं आपके लिंक शेयर कर देता हूँ ग्रुप में फिर से, इसी पे रिकॉर्डिंग मिलेगी। और आपका एक सिंगल सब्सक्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी वाली आईडी से, ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए नाउ आर मूविंग टू नेक्स्ट वन। हम क्या दूसरे को कहें मोहित, हमें तो जब श्रुति बैठी नहीं कर रही है कि लाइक, तो मोहित इसका फोन ले लो। अरे कुछ इम्पोर्टेंट काम कर रही हो। फाइल हैंडलिंग, वी आर डिस्कसिंग अबाउट फाइल हैंडलिंग। देखो फाइल हैंडलिंग मतलब फाइल को हैंडल करना, है ना? तो अकॉर्डिंग टू पाइथन, अकॉर्डिंग टू पाइथन देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ फाइल। पाइथन अकॉर्डिंग दो तरह के फाइल होती है, कौन कौन सी, सो देखिए। टेक्स्ट फाइल, सेकंड वन इज द बाइनरी फाइल। दो तरह के फाइल होते हैं, समझ में आया आपको? टेक्स्ट फाइल एंड बाइनरी फाइल। टेक्स्ट फाइल किसे कहते हैं आप ऑलरेडी जानते हो, व्हाट इज द टेक्स्ट फाइल, which have content documentation is written, है ना, that is the text file। बाइनरी फाइल किसे कहेंगे, which one is the binary file, जिसमें आपकी नहीं, जिसके अंदर आपकी ऑडियो वीडियो mp3 mp4 स्टोर हो, दैट इज द बाइनरी फाइल। बाइनरी का नाम 0 1 उस बात समझे क्या, फ्लावर समझे, फ्लावर समझे क्या, समझ गए? तो दीज आर द थिंग्स। नाउ मैं आपको सिंटेक्स बताता हूँ कैसे लिखेंगे इसकी, फाइल हैंडलिंग का सिंटेक्स बता दूँ ताकि मैं कल आपको प्रॉपर कंप्लीट करा पाऊँ। देखो, तो इसके लिए अगेन वेरिएबल का यूज करना पड़ेगा। वेरिएबल का नाम क्या रखेंगे, ओपन, देन फाइल नेम, सबसे पहले क्या पास करना पड़ेगा, फाइल नेम सबसे पहले, और देन यहाँ पे क्या पास करना पड़ेगा, मोड। वी नीड टू पास योर मोड। मोड क्या होता है, इस फाइल पे कौन सी एक्शन करनी है, दैट इज कॉल्ड मोड। अब फाइल को राइट करनी है, रीड करनी है, व्हाटएवर करनी है, वो आपको मोड सेलेक्ट करना पड़ेगा, समझ गए ना? अभी हम बात कर रहे हैं टेक्स्ट फाइल की, तो मैं आपको मोड कौन कौन से होते हैं वो बताते हैं।
फॉलोइंग मोड आर लिस्टेड बिलो। Mode are listed below. First one is the फर्स्ट मोड इधर पहले तो फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी, तो वी हैव अ एक्स मोड। एक्स मोड यदि आपने यूज किया है तो एक्स मोड में सिर्फ टू क्रिएट कर सकते हो, टू एक्सक्लूसिव क्रिएशन मोड, टू एक्सक्लूसिव सिर्फ आप इसमें एक्सक्लूसिव मोड ओपन कर सकते हो। नेक्स्ट वन इधर डब्ल्यू मोड। डब्ल्यू मोड में क्या होगा, टू राइट द डेटा टू राइट द डेटा इनटू फाइल, मतलब इसमें आप फाइल राइट कर सकते हो। बट देयर इज अ प्रॉब्लम विथ डब्ल्यू मोड, यदि आपके फाइल में ऑलरेडी कुछ रिटेन है, इसको ये क्या कर देगा, ओवरराइट। डब्ल्यू मोड के अंदर एबिलिटी है फाइल क्रिएट करने की भी एज वेल उसमें राइट करने के लिए, बट एक डिसएडवांटेज है यदि उस फाइल के अंदर कुछ भी हुआ तो ओवरराइट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट वन इज द आर मोड। टू रीड द डेटा इनटू फाइल, इसमें क्या करना पड़ेगा, डेटा को रीड, ये सिर्फ रीड कर पाएगा, ओनली रीड, ठीक है। नेक्स्ट वन द ए। इफ यू वांट टू, सपोज हमने कुछ लिख रखा है उसके बाद से लिखना हो तो क्या यूज करेंगे, अपेंड मोड, टू राइट द डेटा फ्रॉम एग्जिस्टिंग। अपेंड मोड हो गया। अब है डब्ल्यू प्लस। डब्ल्यू प्लस में क्या होगा, राइट एंड रीड, राइट एंड रीड द डेटा इनटू फाइल। बट वही सेम प्रॉब्लम, राइट होगा तो ओवर राइट होगा ही होगा। नो नेक्स्ट वन इज द आर प्लस। आर प्लस में क्या होगा, रीड रीड एंड राइट। समझ गया, दिस इज द थिंग्स, दिस आर द फॉलोइंग लिस्ट बिलो ऑफ टेक्स्ट फाइल, ऑफ टेक्स्ट फाइल। समझ में आया है हमारा। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो देखना कैसे काम करेंगे। यहाँ तक समझ में आया। एक बात बताइए, हमारे पास पहले से फाइल होगी नहीं तो हमें किसकी नीड है, एक्स मोड की। तो एक्स मोड से सिर्फ क्रिएट होगा, यदि मुझे फाइल क्रिएट करने से क्या सेंस बनता है, यदि आप फाइल क्रिएट करोगे तो कुछ ना कुछ तो उसमें लिखोगे ना, यस और नो। Why we are creating just unnecessary file? No need of that one. So we need a create a file. Same time we can also have to write it. So you can use which one? W mode. So you can simply write it. df is equal to open and pass here file name. We can pass here file name. Whatever you want. File का name कुछ भी रख सकते हैं। तो हमने रखा intro dot txt। और यहाँ पे मोड कौन सा रखोगे बताओ? मोड कौन सा रखेंगे बेटर रहेगा, डब्ल्यू। एक्स मोड से क्रिएट होगा, डब्ल्यू मोड से क्रिएट होगा। दूसरी बैच इस बैच में नहीं करवाना है, फर्स्ट डब्ल्यू। अब हम डब्ल्यू, अब ये क्या बन जाएगा, फाइल, और उसके अंदर मोड कौन सा एक्टिवेट है, डब्ल्यू। और डीएफ क्या है हमारा, फाइल हैंडलर। इस जिस वेरिएबल के आगे इसको लगा दी दैट बिकम अ फाइल हैंडलर। अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए डीएफ डॉट राइट, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो चाहे वट चाहे हम लिखें, जैसे हमने लिखा माई सेल्फ मोहन प्रसाद, सपोज। अच्छा, यहीं पे मैं यदि चाहूँ कि यूजर से इनपुट लेना हो तो हम क्या करेंगे, इनपुट बॉक्स लगा देंगे ताकि जो यूजर लिखेगा वो इसके अंदर राइट हो जाएगा। नहीं, तो हमने यहाँ पे यूजर के लिए बता दिया, डियर यूजर राइट अबाउट योरसेल्फ। नहीं, डन। अब यहाँ पे राइट हो जाएगा। और लास्ट में दिस इज द मैंडेटरी थिंग्स, whatever you perform a action, either write, read, whatever, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, क्लोज करना। जैसे ही आप क्लोज करोगे ना, डीएफ डिसएलोकेट हो जाएगा। नाउ डीएफ बिकम डिसएलोकेटेड फ्रॉम दिस फाइल। अब डीएफ को इस फाइल से एक्सेस खत्म कर दिया गया। समझ गए आप? जस्ट सी, आप यहाँ पे देखो एक फाइल क्रिएट करो गई है।
ये वक्त फाइल क्रिएट हो गई, देखो आप intro.txt, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ माई सेल्फ समारा चंद फ्रॉम बंगाल देश, सॉरी, फ्रॉम कोलकाता, फ्रॉम कोलकाता, आई हैव कंप्लीटेड कल MIST इंटरव्यू 2 सितंबर की, यहाँ टिकट में गुड़गांव ऊपर पे कल आ जाना है आपको, कल नहीं 2 सितंबर को, परसों को। कल हो सकता है। नहीं परसों मतलब जिस दिन भी है, परसों तो हफ्ते के बाद है। नहीं एक सप्ताह का है ये कंप्लीटेड। हाँ एक बंदा पूंजी कंपनी आएगी। डेटा साइंस कब कितने बजे? बता रहा हूँ, लुक एट इंडिया। और वो दो होते हैं। देखो आप ये राइट हो, क्या हो गया हमारी ये फाइल के अंदर स्टोर हो गई होगी, तो मैं चेक कैसे करूँगा कि स्टोर हुई कि नहीं। एक तो तरीका ये है कि आप डबल क्लिक करके देख लो, यहाँ पे मैसेज बता देगा कि हमने क्या लिख रखा है। देखो डबल क्लिक करोगे यहाँ पे देखो आ गया ना, आपने क्या ये लिखा था आगे। दूसरा तरीका ये है कि जब आप पाइथन के थ्रू यदि रीड करना चाहते हो तो कैसे करोगे, देखो हमने बताया था आपको रीड करने का कौन सा मॉड्यूल था, तो अब आप डीएफ भी ले सकते हो, DF1 कोई वेरिएबल, क्योंकि डीएफ का तो काम खत्म हो गया, तो हमें हम क्या भी यूज कर रहे हैं DF1। DF1 इज इक्वल टू अगेन किस फाइल को रीड करना है वो बताना पड़ेगा, फाइल कौन सा था intro.txt, डबल कोट सिंगल कोट दोनों अलाउड है, और यहाँ पे मोड कौन सा लिखेंगे बताइए R, और रीड करने के लिए कौन सा मॉड्यूल यूज करेंगे df1.read। रीड करने के बाद वो प्रिंट होना चाहिए, इसलिए हमने प्रिंट लगा के अंदर डालना पड़ेगा इसे प्रिंट, तो df1.read हो जाएगा df1 ना। और हमने बताया था लास्ट में इंपॉर्टेंट क्या करना, क्लोज। देखिए अब देखिए आपने जो लिखा था वो यहाँ पे आ गया ना, और प्लेस ऑफ देखिए यही लिखा था ना हमने। एक चीज और बताऊं, यदि आप मोड कोई नहीं सेलेक्ट करते हो तो बाय डिफॉल्ट कौन सा मोड होता है, बाय डिफॉल्ट कौन सा मोड होता है, रीड मोड। चाहे आप मोड सेलेक्ट करो या नहीं करो, बाय डिफॉल्ट कौन सा मोड सेलेक्टेड होता है, रीड मोड। आई बात समझ में, क्या मैं यहाँ तक क्लियर हुआ नहीं हुआ? पता नहीं यार, कोई मैसेज नहीं आया। यहाँ पे समझ में आया आप सभी को? इसका पाथ फाइल का क्या पाथ, फाइल का पाथ, ये सेव कर लीजिए आप यहाँ से, फाइल को यहाँ से सेव करेंगे तब पाथ बना सकते हैं। यहाँ पे ये पाथ है, कॉपी पाथ, विदाउट हमने इसका पाथ नहीं दिया। लोकल मशीन में कर सकते हैं पाथ देके। आप फाइल का टेक्स्ट जहाँ लिख रहे हैं ना फाइल में, वहीं पे आप पाथ पेस्ट कर। ये एक्चुअली कोलैब पे कर रहा हूँ इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ इस पे, समझ गए। अब मुझे सपोज करो इंडिया के बाद से लिखना होता, सपोज वी वांट टू राइट हियर फ्रॉम आफ्टर इंडिया, तो क्या यूज करेंगे बताइए। अब यदि डब्ल्यू मोड यूज कर सकते हैं, नहीं तो हम क्या यूज कर सकते हैं यहाँ पे, एपेंड मोड, क्योंकि अब इंडिया के बाद से लिखना है ना हमें, तो हम क्या यूज करेंगे बताइए यहाँ पे। ये सेम यूज कर लेता हूँ कोड, आपको समझ में आ रहा होगा। अब मोड में कौन सा यूज करोगे आप, एपेंड मोड नहीं। अब यहाँ पे डियर यूजर राइट मोर अबाउट योरसेल्फ, अब यहाँ पे यूजर लिखेगा और फिर लास्ट में क्या करने के लिए हमें क्लोज। देखो अब जो लिखोगे कहाँ से होगा, डॉट के बाद से, इसलिए देखो एक स्पेस दे के लिख रहा हूँ मैं। I have also completed BTech and MTech from BU। अब यदि मैं दोबारा रीड करूँ, इस यही रीड करने का कमांड था ना हमारा, यदि रीड करूँ देखो कहाँ से लिखा है वो आ रहा है, क्या हम यहाँ उसके बाद से लिखे यस और नो, हमारा सारा मोड काम कर रहा है, ये बताओ। ज़्यादा कल की क्लास में आपको W प्लस और R प्लस बताएंगे, क्या आपको क्लियर है? क्योंकि बहुत आगे निकल गए तो आपको दिक्कत होगी पढ़ने में। यहाँ तक दिक्कत तो नहीं हुई, किसी तरह की कोई परेशानी, कोई समस्या?